Okay, students. So let's continue with next question of unit number 5, which is our classwork section. Question का heading है, we have to find out inverse of a matrix by using transformations, elementary transformations. ठीक है? So चलो let's consider this matrix as a. Now since trigonometry is involved, I am taking this problem. Okay? So चलो write down. Consider the given matrix as A. ठीक है? So what is the given matrix? Write down. It is cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, and this is 0 0 1. ठीक है? Now after considering the given matrix as A, we have to first find out determinant of A का value. Determinant of A का value निकालना है. So we put these matrix entries in form of a determinant. Cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0 0 and 1. इसका वैल्यू निकालना है. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू cos theta, leave the first row first column, this into this minus this into this. तो ये आएगा cos theta into cos theta, minus sign by default. फिर ये एंट्री लिखने का, this entry is minus sin theta, so minus of minus becomes plus sin theta, into, leave the first row second column, this into this minus this into this will give us sin theta, and this is already 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. It's clearly visible cos square theta plus sin square theta, तो ये 1 हो गया. Determinant of A is 1. तो अभी हम क्या लिखेंगे? Since, write down, since determinant of A is not equal to 0, since determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists. क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है, इसीलिए A inverse exist हो रहा है. Now we are supposed to do this question by elementary transformation. Now students, please remember, elementary transformation means either row transformation or column transformation. So now obviously we prefer doing this problem by using row transformation. कभी भी हम column transformation prefer नहीं करेंगे unless and until mentioned. ठीक है? तो let us use row transformation. Okay? तो लिखो, we know that row transformation use करेंगे हम. We know that, write down, A into A inverse is equal to capital I. row transformation के लिए दो है, A into A inverse is equal to I for row transformation, and A inverse into A is equal to I column transformation के लिए use होता है. But we will always go for row transformation. चलो, तो let's write down matrix A. इसको यूज करेंगे. तो therefore, अब मैं therefore का सिंबल नहीं डाल रहा हूँ because I need space. ठीक है? तो write down, first row comprises of cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0 and 0 0 and 1. ठीक है? Into A inverse is equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. ठीक है? Now recollect the procedure, students, what we were doing, what we have done in the previous example. Make this entry 1. अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. मेक दिस एंट्री 1, ये दोनों को 0 करने का, इसको 1 करने का, ये दोनों को 0 करने का, इसको 1 करने का और ये दोनों को 0 करने का. You have to convert this matrix A to identity matrix so that we can find out A inverse. अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे 1 करने का है. अच्छा, अभी यहाँ पे अगर मैं 1, if I divide by cos theta, if I divide by cos theta, it might create a problem, क्योंकि यहाँ पे 1 by cos theta आ जाएगा और यहाँ पे tan theta हो जाएगा. So I will try avoiding dividing by cos theta. मैं divide नहीं करूंगा. Now जो trigonometry वाले problems होते हैं ना, आप याद रखो, 1 करने के लिए we use the fundamental identity. For making the entry 1, we make use of the fundamental identity. तो sin cos है, तो we know sin square theta plus cos square theta 1 होता है. अभी हम यूज कर चुके हैं यहाँ पे. ठीक है ना? तो इस एंट्री को 1 करने के लिए हम फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे. तो व्हाट आई डू, राइट डाउन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट डाउन
R1 changes when we do cos theta times of R1, ऐसा लिखो, R1 changes when we do cos theta times of R1। देख करेक्ट, हम कैसे करते थे, अगर किसी भी रो को हम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना, we were multiplying a row by -2, -3 and something like that। वैसा ही है, instead of number we are having function, ये नंबर के जगह पे cos थीटा दिया है ना, यू रिकलेक्ट, हम ऐसा करते थे, आपको याद आ रहा होगा। R1 changes when we do -2 times of R1, -3 times of R1, ऐसा करते थे। तो अभी नंबर के जगह पे cos थीटा है। इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर टू ऑल? यस Yes. ओके, ठीक है। तो चलो रो नंबर 1 को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये पूरा रो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो चेंजेस, तो cos थीटा इंटू cos थीटा मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ध्यान से लिखना, दिस इंटू दिस, 0 इंटू cos थीटा, तो ये 0 ही रहेगा। फर्स्ट रो चेंजेस, सेकेंड रो में देयर इज नो चेंज, sin थीटा cos थीटा 0, 0, 0 and 1, थर्ड रो also remains the same, only R1 changes, हम ऐसे लिखते हैं ना, R1 changes into A inverse is equal to, now राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का भी फर्स्ट रो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा, cos थीटा 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 and 1 एंड क्लोज द मैट्रिक्स का साइन, ब्रैकेट क्लोज कर दो आप। फर्स्ट रो cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड रो एंड थर्ड रो रिमेनिंग सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी, प्लीज चेक। ओके, अभी आप नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, R1 changes when we do R1 plus sin theta times of R2, R1 changes when we do R1 plus sin theta times of R2। अब रिकरेक्ट, हम ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, याद आएगा देखो आपको, R1 changes when we do R1 plus 2 times of R2, R1 plus 3 times of R2, R1 minus 5 times of R2, ऐसा करते थे। वही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, खाली इस नंबर के जगह पे sin थीटा ले लिया है। ओके, इंस्टेड ऑफ नंबर वी आर टेकिंग sin थीटा, क्योंकि प्रॉब्लम sin cos के फॉर्म में है, तो करना पड़ेगा। तो R1 changes when we do R1 plus sin थीटा times of R2। ओके, तो R1 changes, तो देखो क्या मिलेगा, प्लीज चेक। नाउ वी विल मेक द चेंज इन R1, पहले R2 और R3 लिख लेते हैं। R2 is, write down, sin थीटा, दिस इज cos थीटा, ये वर्किंग हम अलग से करेंगे, एंड दिस इज 0, दिस इज 0, 0 एंड 1। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं तो फिर वो एक लाइन में आएगा नहीं। इनटू A इनवर्स is equal to on the other side of equality। ओके, फर्स्ट लेट अस राइट डाउन, जो रो सेम रहने वाला है वो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 0, 1, 0, और ये 0, 0, 1 सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज। द फर्स्ट रो इज गोइंग टू चेंज एवरीवेयर। ओके, नाउ आई नीड स्पेस, सो जस्ट लेट मी रब दिस ऑफ, ये गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, आई जस्ट कीप द नंबर दैट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अभी आप ध्यान से देखो, अभी हमें क्या करना है, R1 changes, तो R1 को अभी हमें लिखना है। Now since I need space, I'll show you the working over here. Now please pay attention for less than 2 minutes or maybe 2 minutes. R1 changes when we do R1 plus sin theta times of R2। अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये R1 के एंट्रीज अभी हमें लिखने बाकी है स्टूडेंट। Now please observe what we are going to do, R1, now what is R1, check out, R1 is cos square theta, please no one will write down, R1 के जगह पे cos square थीटा जाएगा, ओके, प्लस
साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2। तो जब R1 का एंट्री cos स्क्वायर थीटा है, अच्छा चलो वो भी लिख देता हूँ, तो दिस इज साइन थीटा, R2 का एंट्री इज साइन थीटा, R2 का एंट्री इज साइन थीटा, चेक, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू R2 इज साइन थीटा। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एंट्री 1 आएगा। तो ये जो फर्स्ट एंट्री है ये एंट्री 1 आएगा। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर। 1 कैसे आया एवरीवन, प्लीज चेक। Yes, sir. ठीक है ना, ये ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, R1 प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2। अभी आप ध्यान से देखो नेक्स्ट वन, जल्दी मत करो लिखने की। R1, नाउ व्हाट इज R1, साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये यहाँ पे आएगा, देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये किधर आएगा R1 के जगह पे, प्लस प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2। R2 क्या है, R2 है कॉस थीटा, R2 है कॉस थीटा। अब देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0 होता है, वी नो दे बोथ आर सेम टर्म, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये एंट्री 0 आएगा। अभी R1 भी 0 है, R2 भी 0 है, तो ये 0 0 ही रहेगा। नाउ सेम थिंग टू बी डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, ध्यान से देखना, अभी राइट हैंड साइड का वर्किंग कर रहा हूँ। अभी R1 के जगह पे cos थीटा आएगा, R1 के जगह पे cos थीटा आएगा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय R2, बट R2 के जगह पे 0 आएगा, R2 के जगह पे 0 आएगा, तो साइन थीटा इंटू 0 इज 0, तो ये एंट्री है cos थीटा, तो ये cos थीटा का cos थीटा ही रहेगा, cos थीटा का cos थीटा ही रहेगा। नाउ चेक आउट R1 के जगह पे 0 आएगा प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2, व्हाट इज R2, R2 इज 1, तो साइन थीटा इंटू 1 इज नथिंग बट साइन थीटा, एंड साइन थीटा प्लस 0 इज साइन थीटा। तो ये जो एंट्री है, ये जो 0 है ना, अब ये बन जाएगा साइन थीटा, दिस 0 इज गोइंग टू बिकम साइन थीटा। अब ये भी एंट्री 0 है, ये भी एंट्री 0 है, तो ये एंट्री भी 0 है। तो आई रिपीट, प्लीज हैव अ लुक वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, A into A inverse is equal to I हमें यूज करना है, बिकॉज वी आर डूइंग इट बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। A into A inverse is equal to I। अभी हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे 1 लाना है, व्हाट वी डू, R1 चेंजेस व्हेन वी डू cos थीटा टाइम्स ऑफ R1, फर्स्ट रो को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो R1 प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2। Why? We know that cos square theta plus sin square theta is nothing but equal to 1, और ये ट्रांसफॉर्मेशन R1 प्लस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R2, ये आपको मैंने करके बता दिया। तो दिस इज 100 एंड दिस इज cos थीटा sin थीटा एंड 0। नाउ नोट डाउन दिस पार्ट, चलो लिख लो, ये आपका रफ वर्क है, दिस इज योर रफ वर्क। आप ओरली भी कर सकते हो इसको, आप साइड में वर्किंग करके भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। प्लीज स्टार्ट डूइंग। This thing is not necessary to be shown, ये एग्जाम में दिखाना नहीं है, दिस इज अवर रफ वर्क। हाँ, बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने करके बताया कि ये 1 कैसे हो गया एंड ऑल दैट, यू नो, प्लीज नोट डाउन। इफ एनी डिफिकल्टी डाउट प्लीज डू आस्क। लिख के हो गया कि बोलो, देन विल मूव अहेड। ओके, नाउ व्हाट वी डू स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आ गया, देखो ये एंट्री 1 हो गया। अब इस एंट्री को हमें 0 करना है, आई एम मार्किंग, ठीक है, वी हैव टू मेक दिस एंट्री एज 0, ठीक है। पहले इसको हमें 1 करना था, तो पहले cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको 0 करना है, बट हियर इट इज 1, ऊपर यहाँ पे 1 है। So now what transformation should be done? देखो R2 changes, I'll write down with blue color. देखो R2 changes when we do R2 minus sin theta times of R1. R2 minus sin theta times of R1, अपने को पता है प्लस sin theta माइनस sin theta 0 देगा ना,
प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 देगा. नाउ प्लीज राइट डाउन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज. मैं तो यहाँ पे वो एंट्रीज आएंगी नहीं. ओके, नाउ R2 changes. R1 is going to remain the same. R1 and R3 is going to remain the same. तो लिख लो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज ऑफ योर पेज. वेरी, है ना, एकदम लेफ्ट से लिखो. फर्स्ट रो remaining same, which is 101. Second row is going to change. Second row change होने वाला है. थर्ड रो सेम रहेगा. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना सेकेंड रो में. R2 changes, ठीक है ना, तो लीव सम स्पेस ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड. थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा. इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो रिमेन्स सेम. इट्स cos थीटा sin थीटा 0. यहाँ पे ये है 0 0 एंड 1. बाकी का वर्किंग वी कैन डू इट एज अ रफ वर्क के तौर पे हम कर सकते हैं. अब ये R2 चेंज होने वाला है तो जगह छोड़ दिया मैंने. ओके, तो लेट अस मेक दोस चेंजेस. ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं. 0 0 1 है, ठीक है. नाउ लेट्स मेक द चेंजेस. नाउ सी व्हाट हैपेंस. ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम. ये वाला फॉर्मूला इस वाले इधर यूज करेंगे. तो R2 के जगह पे क्या है, साइन थीटा. वर्किंग देखो मैं आपको बताता हूँ. साइन थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर यूजिंग ऑन दिस मैट्रिक्स. तो R2 के जगह पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे 1 आएगा. तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 हो गया. डू इट एज अ रफ वर्क. तो यहाँ पे आप लिख दो ये 0 हो गया. नाउ नेक्स्ट, R2 के जगह पे जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे जाएगा 0. साइन थीटा इंटू 0 इज 0. cos थीटा माइनस 0. तो ये एंट्री cos थीटा रहेगा. तो ये एंट्री cos थीटा मिलेगा. अच्छा, अब ये भी 0 है, ये भी 0 है. R2 भी 0, R1 भी 0. तो ऑब्वियसली ये एंट्री भी 0 ही रहेगा. आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है. नाउ सेम थिंग टू बी डन ऑन द राइट हैंड साइड. यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करना है. ठीक है. तो देखो R2 के जगह पे 0. R2 के जगह पे जाएगा 0 0 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे जाएगा cos थीटा. R1 के जगह पे जाएगा cos थीटा. तो 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा cos थीटा. तो ये वाला जो एंट्री है ना, ये 0 के जगह पे ये जो एंट्री है, दैट्स नथिंग बट माइनस साइन थीटा cos थीटा. सॉरी, दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा. इंटू cos थीटा नीचे लिख देता हूँ थोड़ा. दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा. आई होप दिस इज विजिबल एंड अंडरस्टूड. दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा. क्योंकि यहाँ पे आगे लिखूंगा तो फिर ये एंट्री नहीं लिख पाऊंगा मैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. यहाँ पे देखो R2 के जगह पे जाएगा 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे जाएगा साइन थीटा. R1 के जगह पे जाएगा साइन थीटा. नाउ पे अटेंशन. 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा. एंड वी ऑल नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. मतलब ये जो एंट्री है ये है cos स्क्वायर थीटा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये ट्रांसफॉर्मेशन R2 के जगह पे जाएगा 1 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 इज साइन थीटा. तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा. अब ये एंट्री भी 0 है, ये एंट्री भी 0 है. तो इधर भी 0 ही आएगा. प्लीज चेक द सेकेंड रो वेरी प्रॉपरली. आई होप दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन. ये वर्किंग समझ में आ गया सबको सेकेंड रो का? Yes, sir. ओके. अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इसलिए थोड़ा कुछ आपको अलग लग रहा होगा, बट इट्स द सेम थिंग.
जो हम नंबर्स के साथ करते थे ना, R1 + 2 R2 R1 - 2 R2, वही सेम चीज है, खाली sin थीटा cos थीटा आ गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। चलो तो लेट्स कंटिन्यू अहेड। आई रब दिस ऑफ, ये रफ वर्क है, ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में शो करो। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आप ये स्टेप के बाद ना डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी शोन। हाँ, बट प्लीज सी टू इट दैट कि कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर स्टूडेंट। अब देखो क्या हो गया ऐसा करते वक्त, वी हैव मेड दिस वन, दिस टू। अच्छा, अभी इसको वन करना है, वी हैव टू मेक दिस एंट्री वन, ठीक है। तो हाउ डू वी मेक दिस एंट्री एज वन स्टूडेंट? या वन सेकेंड, वन मोर थिंग, ये जो है R1 चेंजेस, R1 + sin थीटा टाइम्स ऑफ R2, प्लीज चेक। यहाँ पे ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री, ये 1 नहीं है, बराबर है, दिस शुड बी 0, राइट? R1 + sin थीटा टाइम्स ऑफ R2 ना, दिस इज 0, दिस एंट्री टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 0 0 है ना, फर्स्ट रो इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दिस इज 1 0 0, सेकेंड रो चेंजेस, जस्ट मेक दिस एंट्री एज 0, देखो यहाँ पे ये 0 है, so please write down this as 0. By mistake I have written 1. ये 0 है, ये entry. Made the correction? Everyone made the correction? Okay. Now, yeah. What transformation you're saying? How to make this one? 1 by cos theta into R2 into 1 by cos. Very good. Both of you are correct. So देखो, R1 change, R2 changes. R2 changes when we do 1 by cos theta times of R2. मतलब जो सेकेंड रो है, पूरे सेकेंड रो को हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। The complete second row we divided by cos theta on both the sides of equality. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, फर्स्ट रो remaining the same 1 0 0, please see to it that this is 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 0 0 था, तो ये 1 0 0 ही रहेगा। Now the second row is going to change, तो सेकेंड रो हम लिख देंगे बाद में, पहले जो रो सेम है उसको सेम रख देते हैं, into A inverse is equal to, on the other side of equality there is no change in the first row, यहाँ पे है cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा, सॉरी दिस इज टू बी चेंज, राइट? R2 इज टू बी चेंज्ड, R2 चेंज होने वाला है, R3 is going to remain same, 0 0 and 1. R2 is going to be changed on both the sides. अभी पूरा सेकेंड रो cos थीटा से डिवाइड हो जाएगा, तो जब हम सेकेंड इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे, दिस इज गोइंग टू रिमेन 0, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाय cos थीटा, so this is going to become minus sin theta, this also divided by cos theta, this is going to be cos theta, and this is 0. अब देखो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, this matrix is being converted to identity matrix, 1 0 0, this entry is 1, they are 0, this entry is 1 and they are already 0. तो देखो therefore what do we get, I into A inverse, this is identity matrix, I into A inverse is equal to, write down, this matrix is what, cos theta sin theta 0 in the first row, minus sin theta cos theta 0 in the second row, 0 0 and 1 in the third row. क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, I into A inverse is the given matrix, is the matrix obtained on the right hand side. तो लिखो therefore final answer, therefore A inverse is equal to, A inverse, I into A inverse is A inverse,
A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आप लिख लो, cos थीटा sin थीटा 0 minus sin theta cos theta 0 and this is 0 0 and 1 और यही हमारा फाइनल आंसर है और A इनवर्स है. This itself is our final answer and A inverse. Huh? Now since sin and cos is involved, this question can be easily asked for 4 marks. 4 mark के लिए easily आ सकता है. Please check. If any doubt, please let me know. I will clarify. ये माइनस साइन थीटा लिखा है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. तो जैसे हमने रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम्स किए हैं, तो either you do it when it is being told to us कि use the elementary transformation, so we can do it by either row transformation or column transformation. Both the methods we have learned, but if it is mentioned elementary transformation, always prefer doing the problem by row transformation only. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया है आपको do it by row transformation, तो row transformation से ही करना पड़ेगा हमें. If it is mentioned do it by column transformation, तो column transformation से ही करना पड़ेगा. But if it is mentioned कि do the problem by elementary transformation, so we have a choice, हम row से भी कर सकते हैं, हम column से भी कर सकते हैं. But I would suggest you prefer row transformation only. column से करने की कोशिश नहीं करना. That is my suggestion. Rest is up to you. आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है.